There's a reason why for the last 13 years, startups overwhelmingly prefer to build on top of AWS. We have the largest number of services, making it easy for you to take on some of the biggest challenges with the smallest teams. We also have partnerships with the top VCs, accelerators, and incubators around the world, making it easier to secure your next round of funding. I'm a solution architect with the AWS Head Start program. What we do is we work with startups in the education sector, and we help them build their services on AWS. So We Power Tech is AWS's diversity and inclusion outreach program. The program is really twofold. One is to increase the number of underrepresented technologists within the industry, and the second is to provide a platform for them to be seen and heard. If you're wondering how the AWS evangelism team might be able to help your startup, there are many ways. We're technically credible across our entire catalog of products, so we can help you figure out which services might be able to meaningfully impact your business. We also want to help tell your story. So if you're building something cool, we want to know about it and help spread that message to the world. So you might end up on stage at an event like AWS Summit. If you're a startup, you should also definitely check out the AWS Lofts. These are event spaces that are free to anyone with an AWS account. And you can treat them like co-working spaces, but the awesome thing about them is that we also have people like technical evangelists like myself, solutions architects that come and give hands-on technical workshops and sessions to help you learn how to more effectively utilize the AWS products and platforms that you're already building on top of. We are a dedicated team of people that love startups. We just want to come and help you with whatever we can, whether it be technical or business focused. We are here to help guide you and make sure that you do have a say in what's going on. We do get your feedback. We do bring that feedback to the service teams. That is what we're here for. Assalamualaikum. मेरा नाम रोशान बशीर है and I'm the co-director at Startup Grind साहिवाल। मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आज के सेशन में, और सबसे पहले उन लोगों को बताता चलूँ जो हमें न्यू ज्वाइन कर रहे हैं। Startup Grind is the largest community of startups, founders, innovators and creators. हमारा मकसद लोगों को मिलाना, जोड़ना, एजुकेट करना और इंस्पायर करना, और ये सब हम अपनी फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंसेस, लोकल इवेंट्स, मीडिया क्रिएशन और पार्टनरशिप्स के थ्रू करते हैं, और हमारा अराउंड 3.5 मिलियन ग्लोबल रीच है। हमारे साथ ग्लोबल पार्टनर्स हैं AWS and Google for startups, and we also have some local partners. So today we have a session, health and wellness, with Mr. Fatmi Ghani. तो आज के सेशन की तरफ मूव करने से पहले मैं अपने गेस्ट स्पीकर का तारुफ कराना चाहूँगा। मिस्टर फातमी गनी इज द ऑथर, ट्रेनर एंड इंटरनेशनल बिजनेस कोच। उन्होंने 30 साल पाकिस्तान एयरफोर्स और UAE एयरफोर्स में एज एन एरोस्पेस इंजीनियर काम किया। उसके बाद उन्होंने 2003 में अपना बिजनेस हेल्थ एंड वेलनेस स्टार्ट किया। इसके अलावा इन्होंने अपने इंटरनेशनल कोचिंग टेन्योर में ऑलमोस्ट 1 लाख से ज़्यादा यंग पीपल को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर चुके हैं, जो कि आज सक्सेसफुली अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। आगे आने वाले सेशन में हम अपने स्पीकर से ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका ये फ्रॉम एन एरोस्पेस इंजीनियर टू एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ कैसी थी। तो आई वेलकम यू सर इन दिस सेशन and thank you for joining us. I welcome you again. मैंने जो ज्वाइन किया हमारी जो कंपनी है DXN, उसको नॉट एज अ बिजनेस मैंने ज्वाइन किया था फॉर माय ओन हेल्थ रीजन। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं आप एंटरप्रेन्योर बने, एंटरप्रेन्योर कोच बने, तो मेरा मकसद ये बिजनेस को देखने का तो था, लेकिन मेरा अपना कुछ ज़ाती एक प्रॉब्लम था जिसके वजह से मैंने इसको ज्वाइन किया एज अ कंज्यूमर। और कंज्यूमर जब मुझे फ़ायदा मिला तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना इसको एज अ बिजनेस देखूं, क्योंकि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मुझे दे रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर 2003 में तो ज्वाइन तो किया, लेकिन बिजनेस मैंने स्टार्ट किया 2004 से। तो इसमें क्या आपका गोल क्या था जब बिजनेस स्टार्ट किया था? एक जैसा कि टास्क होता है, प्रोजेक्ट होता है कि मैंने यहाँ तक पहुँचना है, इसको इस लेवल तक लेके जाना है, कोई आपका प्रोजेक्शन थी या जस्ट आपका था कि बस स्टार्ट हो जाए? आई एम अ वेरी फोकस्ड पर्सन। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली ने मुझे डिसिप्लिन सिखाया, एयरफोर्स ने मुझे डिसिप्लिन सिखाया,
तो लाइफ में जो है एक पर्पस होना चाहिए, जस्ट यू शुड नॉट जस्ट गो कि लाइफ को गुजारना है। जब मुझे मिला ये मौका, अल्लाह ताला का जितना भी मैं शुक्र अदा करूं कम है। पहली बात तो सेहत मिला इससे, और जब मैंने देखा जो चीज मैं 96 से स्ट्रगल कर रहा था टू गेट इनटू द बिजनेस और हो नहीं पाया, सक्सेस नहीं, कामयाबी नहीं हुई, तो 2004 में मैंने बहुत सारे कामयाब लोगों को देखा हमारे बिजनेस में। तो हमने कहा कि अगर वो कामयाब हो सकते तो मैं भी हो सकता है। ऐसा कोई उस जो शख्स है उसमें और मुझ में कोई ऐसा फर्क तो नहीं है, पढ़ना पड़ेगा अलबत्ता। तो उस वक्त मैं नौकरी कर रहा था और यूएई फोर्स में पायलट्स को ट्रेन कर रहा था, और सैलरी जो है मेरी काफी अच्छी थी। तो उस सैलरी तक आने के लिए जो है ना मुझे बहुत जो है ना मेहनत करनी पड़ी, और दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 2004 से लेकर 2007। तो मेरा जो टारगेट ये था कि मैं जॉब से निकलूं तो इतना ही मुझे इनकम मिले। तो उसके लिए ऑफ कोर्स 8 घंटा मैं जब काम करता था तो 8 से 10 घंटा मैं अपने बिजनेस में लगा। ये जो आपकी बुक साथ में ये जो आपकी बुक है मैप योर फ्रीडम, जी, इसका आइडिया कैसे आया आपको? ये वर्ड जो है मैप योर फ्रीडम एक काफी अच्छा है, इसी के पूरा एक मोटिव है। ये 2005 में जब मैंने देखा कि मैं जो है ना मेरी अपनी पर्सनल फ्रीडम मिल सकती है, तो ये मैंने वेबसाइट बनाया, और फिर जो लोगों को फ्रीडम चाहिए तो वो मुल्क को तो फ्रीडम मिल जाती है, मतलब 50 साल 70 साल 100 साल, लेकिन लोगों को फ्रीडम नहीं मिलती। तो ये आइडिया उस वक्त आया कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे मिली वो है फ्रीडम फ्रॉम डिजीज। देखिए आप कितना ही अमीर हो, लेकिन अगर आपके पास सेहत नहीं तो आप कुछ नहीं है। फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर 2, टाइम फ्रीडम नंबर 3, नंबर 4 ट्रैवल फ्रीडम। जिस तरह आप लोग यंग लोग हैं, आप लोग ट्रैवल करना चाहते हैं तो ट्रैवलिंग का भी होना चाहिए, और ग्रोथ फ्रीडम। ये तो 5 हो गए, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट जो फ्रीडम जो लोगों को खुशी देती है वह है फ्रीडम टू गिव। जब आप देते हो तो आप अमीर बनते हो। तो ये कॉन्सेप्ट आया 2005 में, इसलिए क्योंकि हेल्थ फ्रीडम तो मुझे मिला अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाना था, ताकि मैं जो है ना अपना बॉस बन जाऊं। तो ये ठीक है। और आजकल जो वैसे ये कोरोना वायरस की वजह से हर कोई परेशान है जी, कोई बिजनेस नहीं चल रहा, सैलरीज पर्सन उनके सारे शट डाउन हो चुके हैं, तो उनके लिए आपके पास क्या है? आज आप क्या ले आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन है उसी के अराउंड है। दुनिया जो है एक नई दुनिया बनी है अभी, और आगे जो आने वाला तो उसमें मैं ये प्रेजेंट कर रहा हूं। और मेरी जो स्टूडेंट्स है वर्ल्ड वाइड, इस 6 महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों ने इससे फायदा लिया है। तो अगर आप लोग सुनेंगे, जो लोग अभी ऑडियंस में हैं, तो आपको एक मैं आइडिया दूंगा। और जिस तरह रोशन ने कहा है कि इंस्पायर करना और मोटिवेट करना, ये इंस्पिरेशन मोटिवेशन आपके अंदर है। मेरा काम है एजुकेट करना, मेक यू अवेयर कि किस तरह से आप जो है ना इसको समझे, और इसको अगर लेके चलना चाहते हैं यू आर मोस्ट वेलकम। बिल्कुल सर। और अभी आपके ये वाले आप अपनी प्रेजेंटेशन के साथ कैरी ऑन करें। जो मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूं, और काइंडली आप लोग मुझे बताएं कि आप मेरा स्क्रीन देख सकते हैं। कंफर्म करें काइंडली रोशन कि आप मेरा स्क्रीन देख रहे हैं। जी बिल्कुल, ओके। मेरी आवाज भी क्लियर आ रही है? जी क्लियर है सर। ऑलराइट। सो आज का जो मेरा मौजू है नजर आ रहा होगा आपको, हेल्थ एंड वेलनेस। और ये सोशल मीडिया के थ्रू जो है ना आप कैसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन कबल इसके मैं स्टार्ट करूं पूरा प्रेजेंटेशन, मैंने जो है 2 सवाल करने हैं, बहुत ही क्रिटिकल सवाल है। अगर मैं आपको 1 to 10, 10 being the topmost and 1 being the lowest,
आप अपनी सेहत को किस ग्रेडिंग देंगे? 10 बीइंग कि सेहत बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 1 बीइंग चलेगा, कोई मसला नहीं। तो ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूं और ये आप ही जवाब देंगे। पहला सवाल तो ये है, और दूसरा सवाल जो है, जो इनकम है, जो आप आमदनी कमा रहे हैं, खा वो आप बिजनेसमैन हैं या आप जॉबर हैं, तो वो कितनी इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में रखती है? तो ये दो सवाल के बाद में जो है ना अब आगे बढ़ता हूँ। ऑलरेडी मेरे बारे में उन्होंने बता दिया है। मेरा नाम मोहम्मद फातमी गनी है, एरोस्पेस इंजीनियर, स्पीकर, ट्रेनर, नेटवर्क मार्केटिंग कोच और ऑथर है। तो अब जो नीड है हेल्थ एंड वेलनेस का, सोशल मीडिया के थ्रू क्यों इतना जरूरी है, क्रिटिकल है? बिकॉज ऑफ टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दुनिया अब जो है ना न्यू नॉर्मल में, जो नॉर्मल से जो है ना नई दुनिया आ गई है, और वो आई है बिकॉज ऑफ कोविड-19। जिस दुनिया में अभी हम रह रहे हैं और जो आने वाला जो दुनिया होगा वो बहुत ही मुख्तलिफ होगा। इम्पैक्ट ऑफ कोरोना हेल्थ वाइज, मैं अभी हेल्थ की बात करता हूं, अभी तक तकरीबन 14 मिलियन लोग कंफर्म्ड कोरोना के जो है ना शिकार हुए हैं, जिनमें से ऑलमोस्ट 8 मिलियन जो है ना रिकवर हो गए, इज अबाउट 8,000। तो ये फिगर है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे नहीं पता किस तरह से पाकिस्तान में लोग इसको सीरियसली ले रहे हैं। जहां मैं रह रहा हूं अभी ऑलमोस्ट बहुत ही कम है यहाँ पर, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है। लोग जो है ना जितना प्रिकॉशन और प्रिवेंशन कर सकते हैं, ओनली एसेंशियल ट्रैवलिंग करते हैं, नॉन एसेंशियल कोई भी इधर उधर मूव नहीं करता है। द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना जॉब वाइज और बिजनेस वाइज, ये यूनाइटेड नेशन लेबर का ये है, half of global workforce is at risk job losses increase due to COVID-19। अभी तक 35 मिलियन लोगों का जॉब लूज हुआ है और ये बढ़ता ही जाएगा आने वाले दिन में। अभी मिलियंस ऑफ वर्कर्स, मतलब यहां पर मैं कह रहा हूं तकरीबन 1 मिलियन लोगों की जॉब जो है ना चली गई है। इसी तरह पूरी दुनिया में गई है जिनका कोई इनकम नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, फ्यूचर नहीं है। तो मिलियंस ऑफ बिजनेसेस जो है ना बंद हो गए और लोगों के पास सेविंग नहीं है, कैसे आगे इसको लेके चले। तो अभी जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है ये आपने समझना है, और इसके लिए आपने दो चीज जो आपने सीखना है, और वो दो चीजें हैं आपकी और आपकी फैमिली की सेहत, वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है। और नंबर 2 ऑफ कोर्स इनकम। अगर इनकम नहीं होगी तो आदमी दोबारा बीमार होगा। सो द वर्ल्ड ऑर्डर जो नॉर्मल है ना, दे विल बी अ न्यू नॉर्मल। ये मैं दोबारा आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप इस सोच में ना रहे कि हम जो है ना 2019 वाली दुनिया में वापस जाएंगे। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। क्योंकि मैं बहुत सारे जो है ना इकोनॉमिक फोरकास्टर्स से मिलता हूं, बात करता हूं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, और वो लोग सारी यही कह रहे हैं कि बहुत बड़ी तब्दीली आनी है। तो ये जो न्यू नॉर्मल है क्या, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आज कोविड-19 है, कल कुछ और आएगा। कोविड नहीं होगा, बोविड होगा, 25 होगा, 30 होगा। इसी तरह दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां आएंगी, और उससे आप किस तरह से अपना बचाव करते हैं। अब इसमें जो नीड ऑफ द आवर है, जो जरूरत है इस वक्त की सबसे, कि अभी आपका क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाया जाए, आपका लंग्स को। ये दो एरिया में जो लंग्स में अटैक हो रहा है ये, तो वो बिकॉज ऑफ इम्यून सिस्टम लोअरिंग, राइट न्यूट्रिशन का नहीं मिलना और ऑक्सीजन की कमी। ये लेटेस्ट तकरीबन 2 हफ्ता पहले WHO ने एक वीडियो क्लिप डाला था, कोई 2 मिनट का था, और उसमें बताया जा रहा था कि लंग्स की में जो है ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज तो ये है, कल कुछ और होगा। इसी तरह जो है हमें सेहत को जो है ना नंबर 1 प्रायोरिटी देनी है। सो द फ्यूचर ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस बिजनेस। अब मैं बिजनेस में आता हूं।
ये साहब हैं जिनका नाम है पॉल ज़ेन पिल्जर। मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ 20 साल से, और ये जो किताब है आपको जो नजर आ रही है, द न्यू वेलनेस रेवोल्यूशन, ये मैंने पाकिस्तान से लिया था जब मुझे पता लगा तकरीबन 2004-05 में। लिबर्टी आपका बुक स्टॉल है कराची में। तो ये साहब जो है ये प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक के, और ये बताते हैं द वेलनेस इंडस्ट्री जो सेहत के साथ है ये $1 ट्रिलियन पे जाएगा ये इन द कमिंग 10 years। और ये एक है एक आम इंसान को बिजनेस को स्टार्ट करने में। पहले क्या होता था, कोई मैन्युफैक्चरिंग करता था या कोई तालीम लेकर बहुत हायर लेवल में चले गया, कंसल्टेंट बन गया, डॉक्टर, इंजीनियर, वो सारा बन गया। इनका कहना यह है कि अगर आदमी किसी भी बिजनेस में दाखिल होता है तो उसमें आपका कंसल्टेंसी या मैन्युफैक्चरिंग या रिटेल नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और ये जो है आपका ये इमर्जिंग मार्केट है। इमर्जिंग मार्केट मतलब है यही आपका, एक सेकंड, बैटरी जैसा वो हो रहा है। All right. So coming to the wellness industry, जो डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, ये इनका कहना है। और आप YouTube में जाकर इसका आप देख सकते हैं, बहुत सारे इनके वीडियोस हैं इसमें। दुनिया के अभी ये जो Amazon के ओनर है, रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड में हैं, इनका अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है। जैक मा जो एशिया का रिचेस्ट मैन है, दोनों का जो है ना जो बिजनेस है वो डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड है। तो आप इससे मिसाल ले सकते हैं, इसी 6-7 महीने में Amazon ने मैक्सिमम बिजनेस किया है उनके पूरे जो टेन्योर का उनका जो बिजनेस है। एक सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है उसमें वाईफाई में। जस्ट अभी आपको नजर आ रहा है रोशन? आ रहा है। ओके। अब मैं आपको एक साहब का बताऊंगा जिससे मेरी मुलाकात हुई 2007 में, जब मैंने डिसाइड किया। इनका नाम है प्रोफेसर चार्ल्स किंग, और वो कहते हैं क्राइटेरिया फॉर अ परफेक्ट बिजनेस। इन्होंने बड़ी खूबसूरत किताब लिखी, द न्यू प्रोफेशनल्स। और उसमें इन्होंने कहा कि कोई बिजनेस अगर आपने हाथ डालना है तो ये काफी बड़ा होना चाहिए ये बिजनेस, और ग्लोबल होना चाहिए। पूरी दुनिया में आपका बिजनेस का जो है ना वो होना चाहिए, रीच होना चाहिए। जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल यूनिक हो, मुनफरिद होना चाहिए, हटकर, जो मार्केट से हटकर हो, तभी आप उसमें कामयाब हो सकते हैं। कंज्यूमेबल प्रोडक्ट हो, जो आप उसको इस्तेमाल करें, उसको खाएं या पिएं, और वो प्रोडक्ट का जो ताल्लुक है वो आपकी सेहत के साथ होना चाहिए। तो ये आपके 4 क्राइटेरिया है। और 5वां जो क्राइटेरिया है वो है उसकी मार्केटिंग आप करें थ्रू डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। ये जो इंडस्ट्री है इसके बारे में मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा, और ये कब से चला है ये सारा जब आपको पता लगेगा कि इस इंडस्ट्री में किस तरह से आप इन्वॉल्व होते हैं। जो प्रोडक्ट है डायरेक्ट सेलिंग में, जो भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, खा वो आपका हेल्थ सप्लीमेंट हो, खा वो आपका साबन हो, खा वो की चाय हो, आपको मिल रहा है, तो हम जो है नॉर्मली, हम जो है ना क्या है, नॉर्मल रेगुलर कंज्यूमर है। रेगुलर कंज्यूमर से आपने मूव करना वाइस कंज्यूमर में। वाइस कंज्यूमर वो होता है कि वो प्रोडक्ट ले और इससे सेहत का तो फायदा मिलेगा, लेकिन साथ उसको कुछ आमदनी मिलेगी। जब आप किसी ऐसे कंपनी के साथ ज्वाइन करते हैं, कंपनी है जिसका 27 साल हो गया है इनको, और आपको एक कार्ड मिलता है, अगर कार्ड नहीं मिलता, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, और आपको प्रोडक्ट डिस्काउंट में मिलता है।
अब आप कहेंगे कि क्यों मैं अपना ब्रांड चेंज करूं? मैं अगर चाय पी रहा हूं, एक हमारा ब्रांड है, या मैं जो है कोई जूस ले रहा हूं, या कोई मैं सप्लीमेंट ले रहा हूं, ऑलरेडी अगर प्रूवन टेस्टेड प्रोडक्ट है जो आपको हेल्थ दे रहा है, और साथ वो प्रोडक्ट जितना आप खरीदेंगे आपको वो फायदा तो मिलेगा, आप उससे पॉइंट्स जो है लॉयल्टी पॉइंट्स आपको मिलता है। अब पाकिस्तान में ये टीसीएस के कार्ड है, इसे जुनैद जमशेद का है, स्टाइलो है। अभी पाकिस्तान में तो बहुत ही रीसेंट हुआ है, 25-30 साल हुआ होगा, लेकिन ये काफी अरसे से दुनिया में जो है ना लॉयल्टी पॉइंट सिस्टम के तहत जो है ना बिजनेस हो रहा है। अब आप क्या करते हैं, आपको एक प्रोडक्ट मिलता है, आपके कोई स्पॉन्सर होता है या आपको कोई कोच करता है, आपने लोगों तक जाना है जो आपको ट्रस्ट करते हैं, आपके दोस्त हैं, नेबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जिनको आप जानते हैं, और आप चाहते हैं कि उनको भी फायदा हो जिस तरह आपको फायदा हो। अब द बिजनेस जो है ना स्टार्ट होता है आपसे। आप पहले खुद इस्तेमाल करें, यू बिकम अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। जिस तरह मैंने कहा आपको शुरू में कि मैंने जो ज्वाइन किया, मेरा जो अपना जो प्रॉब्लम था उसका कोई मॉडर्न मेडिसिन में कोई उसका इलाज नहीं है। मेरा अपना भाई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, तो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है वो प्रोडक्ट जो फायदेमंद है, आप लोगों को उसके बारे में बताते हैं, जब वो लेते हैं उनको फायदा होता है, फिर आपको भी फायदा होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, हम बातें करते हैं, कोई अच्छी चीज हो, कोई अच्छा रेस्टोरेंट हो, कोई अच्छा सेल लगा हुआ है, कुछ भी है, लेकिन हमें पैसा नहीं मिलता उससे। बट हमारी इंडस्ट्री में जो चीज आपको फायदा दिया, जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं उनको फायदा मिलेगा, तो इसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। और बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि क्या इसमें मुझे सेलिंग करना होगा? बिल्कुल नहीं। मुझे अभी 18 साल हो गया है और मैंने एक भी प्रोडक्ट अभी तक बेचा नहीं। तो मेरी स्टोरी जिस तरह अभी मैंने आपको बताया, जॉब से मेरा बिजनेस एक्सपीरियंस जो आया, अभी आप ये देख, मैं बड़ी फख्र से कह सकता हूँ पाकिस्तान एयरफोर्स में मैंने F-16 प्रोग्राम में मैंने काम किया, और वहां से जब मैंने अपने बिजनेस एक्सपीरियंस में आया, जिसमें मैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में, क्योंकि मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स थे। अब इमेजिन करें, मैं क्योंकि वो देख लिया था कि कोई वो बिजनेस करो जो दूसरे लोग नहीं कर रहे हो, तो मैंने यहां से टेक्नोलॉजी लेकर गया फ्रॉम कनाडा टू दुबई, और वो टेक्नोलॉजी के साथ में लगा रहा 3-4 साल तक, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुआ। लेकिन मुझे बिजनेस के बारे में मुझे पता लगा। फिर एक और बिजनेस मैंने स्टार्ट किया जिसका नाम है वेस्ट मैनेजमेंट। ये सारा कूड़ा करकट जो है, इसको किस तरह से जो है ना इसको रिसाइकिल किया जाए। मैं कराची भी आया था इसको लेकर, और बड़े हाई लेवल में लोगों से बात की, लेकिन उस वक्त तक जो है मैं 90 के एंड की बात कर रहा हूँ, लोगों ने इतना अच्छा नहीं, तो इस किस्म के मैंने 2-3 और बिजनेसेस किए। मेरा जो बैकग्राउंड है, जो मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी, ये 2000 से, अभी ऑलमोस्ट 20 साल हो गया है, और 2003 में मैंने ज्वाइन किया, 2007 में कंप्लीट फुल टाइम आ गया। और ये बिजनेस जो है हमारा, ये आपने जो अंडरस्टैंड करना है, ये डायरेक्ट सेलिंग और जॉब और बिजनेस में कैसे इनका आप अगर कंपैरिजन करें, जॉब में आप जब नौकरी करते हैं तो आपको एक तनख्वाह मिलता है। हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपका ग्रोथ जो है या आपका इनकम एक्सपोनेंशियल है। ये नहीं कि आप 10 घंटा लगाएं तो उसका आपको पैसा मिलेगा। आप शुरू में, तो जाहिर बात है बिजनेस है, बिजनेस में 3 साल 4 साल लगता है किसी को स्टैब्लिश होने में। जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अभी आप देख लें क्या हाल है, पूरी दुनिया में मिलियंस ऑफ लोग जॉब जो है ना खो रहे हैं। यहां पर आपका अपना बिजनेस है और इससे बेहतर बिजनेस हो ही नहीं सकता। अभी हमारा बिजनेस 30% बढ़ गया है इस 7 महीने के अंदर, और आपका लोकेशन तो है ना एक ही जगह है,
एक ही दफ्तर में आप काम कर रहे हैं, या छोटा बिजनेस है एक ही जगह आप काम कर रहे हैं। हमारा जो बिजनेस है वो ग्लोबल है। आप कराची में बैठे हुए हैं या साहिवाल या मुल्तान में बैठे हुए हैं, वहां बैठकर पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में आप बिजनेस कर सकते हैं। इनकम जो है आपकी, जो सैलरी फिक्स है, हमारा जो इनकम है अनलिमिटेड है, और एक ही किस्म का जॉब नहीं करते हैं, जो जॉब में यही है, लेकिन हमारा जो है ना एवरी डे एवरी मंथ इज अ न्यू चैलेंज। तो वेल्थ जो है, जो इसमें बड़ा खूबसूरत एक तस्वीर है, डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी फॉर वर्क फॉर यू। ये जो कॉन्सेप्ट है ये 100 साल से ज्यादा हो गया, तकरीबन 35 साल हो गया। ये कॉन्सेप्ट जो है ना डायरेक्ट सेलिंग ने दिया कि एक ऑर्डिनरी आदमी किस तरह से इसको आगे लेके चल सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या कह रहे हैं। बदकिस्मती एशिया और अफ्रीका में यह है कि वहां पर लोग समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है ये सही बिजनेस नहीं है। अब आप देखें, ये साहब, इनका नाम है वॉरेन बफेट। ये बिलियनर हैं और स्टॉक एक्सचेंज की या बाबा माने जाते हैं। इनकी पूरी फैमिली दे आर द रिचेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई एवर मेड। 3 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इनकी है। बिल गेट को हर एक जानता है। कहते हैं अगर मुझे चांस मिला कोई चीज करने का तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। ये सारा जो है ना स्टैटिस्टिक्स मैं आपको दे रहा हूं। बिल क्लिंटन जो यूएस का प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने कहा योर इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग गिव्स अ चांस फॉर एवरीवन टू मेक द मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स। और इमेजिन करो, ये अथॉरिटी है इन द इंडस्ट्री ऑफ इन द बिजनेस एज वेल एज ओवरऑल जो द मूवर्स एंड शेकर्स हैं। व्हाई डायरेक्ट सेलिंग इज द अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम। ये एक पढ़े लिखे को भी चांस देता है, एक अनपढ़ को भी चांस देता है, एक बहुत गरीब आदमी को भी देता है, एक अमीर आदमी को भी। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, लेकिन अगर आप इसको एज अ बिजनेस लेके चलना चाहते हैं तो चल सकते हैं। तो एक मर्तबा आदमी जब ज्वाइन करता है उसके बाद वो पढ़ाई स्टार्ट करता है, और पढ़ाई करते करते जो है वो बिजनेस को लेकर आगे बढ़ता है। अभी मेरे जो सबसे दुनिया में जो बेस्ट स्टूडेंट है ना वो यमन के हैं। अब इमेजिन करें, यमन इज अ वॉर टॉर्न कंट्री, वर जो है ना मिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस हो रहा है इस मौजूदा जो हालात में। तो आप किसी टाइम भी कर सकते हैं, और ये लाइफ टाइम बिजनेस है, कहीं से भी कर सकते हैं। और वेलनेस, जिस तरह आपने देखा $1 ट्रिलियन पे जाएगा ये हमारा जो बिजनेस है, हेल्थ एंड वेलनेस का जो बिजनेस है। और जहां पर कोई भी प्रोडक्ट जो लोगों को सेहत दे रहा है वो रहेगा। अगर अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट हो उसकी रिपीट सेल्स होगी। और ये $200 बिलियन से ज्यादा का ये इंडस्ट्री है। अब इमेजिन करें, $200 बिलियन का टर्नओवर है डायरेक्ट सेलिंग। हॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री को अगर कंबाइन भी करें ना, ये नहीं है, इतना नहीं है उसका टर्नओवर। तो अभी पाकिस्तान जो है अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज से गुजर रहा है। जिस तरह बाकी बिजनेसेस में है वो लेवल नहीं है। यहां पर आउट ऑफ 200 बिलियन 1/3 बिजनेस जो है ना वो अमेरिका और कनाडा में होता है। क्यों? बिकॉज यहां से स्टार्ट हुआ है 130-35 साल पहले। हमारा बिजनेस में लोग कहते हैं ये पिरामिड स्कीम है। जब आप देख रहे हैं ये पिरामिड, लेफ्ट साइड में ट्रायंगल है, जो टॉप में जो बंदा है वही पैसा कमाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये सारे ऑर्गेनाइजेशन का है, खा वो गवर्नमेंट को देखे या प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने उसकी मेयर है उनका, और जो टॉप में आदमी है उनकी बराबरी नहीं हो सकती। इसी तरह किसी कंपनी का कोई अगर प्रेसिडेंट है या कोई चेयरमैन है वो टॉप में होता है और नीचे लोग होते हैं। तो वो साहब जो है ना अगर पहुंचना चाहते हैं 40-50 साल के बाद तो पहुंच सकते हैं टॉप पोजीशन। हमारा जो है अगर राइट साइड में देखिए, दिस इज इन्वर्टेड ट्रायंगल।
बंदा स्टार्ट करता है जीरो से और टॉप का जो स्लॉट है वो ओपन है, कोई भी इस बिजनेस में टॉप में जा सकता है। तो ये जो लोगों का ख्याल है कि जो पहले जो लोग ज्वाइन कर गए तो उनको ज्यादा पैसा मिलेगा और जो टॉप में जो बंदा बैठा हुआ वही सारा पैसा लेगा, ये बिल्कुल गलत है। इसको कहते हैं अदल वाली बिजनेस। आप आज ज्वाइन करते हैं हमारा बिजनेस, आप मुझसे ज्यादा मेहनत करते हैं तो आपको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए और ये टाइम लगेगा, 5 साल 6 साल, आप जहां जा सकते हैं उसमें जा सकते हैं। द रियल बिजनेस ऑफ अ लाइफ टाइम इस दुनिया में तो है ही है, लेकिन आफ्टर लाइफ टाइम। अब ये मेरे एक दोस्त है, ये भी यमनी है, पायलट, ये मेरे साथ होते थे और बड़ा डायनेमिक लीडर हमारे बिजनेस में, डायनेमिक फाइटर पायलट था। और 1 साल के बाद जो है, जब मेरी मुलाकात हुई थी इनके साथ, ये तस्वीर मैंने इनकी ली। अब ये जो बिजनेस वो कर रहे थे वो उनकी वाइफ की तरफ चल गया, विरसे में चले गया और उस वक्त इन $900 तकरीबन आ रहा था इस बिजनेस के तहत। अब उनकी फैमिली को उससे 3-4 गुना ज्यादा पैसा मिल रहा है क्योंकि वो बिजनेस ग्रो किया, उनकी वाइफ, उनके बच्चे इस बिजनेस में आए, तो ये विरसे में भी ये बिजनेस जाता है। तो द हिस्ट्री जो है, जो मैंने आपको बताया कि इसको हो गया है 135 साल, 120 मिलियन लोग इससे जुड़े हुए हैं और इसमें ऐसे लोग इसमें जुड़े हुए थे जिसमें अभी जो आपका डोनाल्ड ट्रंप है, जो प्रेसिडेंट है, ये 30 इस बिजनेस के थ्रू जो है ना, इसने पैसा भी कमाया है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये डीएसए डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत ही पावरफुल और जो उनकी जो पकड़ है वो किसी को भी पकड़ सकते हैं अमेरिका में। इसका नाम है एफटीसी, फेडरल ट्रेड कमीशन। जितना भी इंटरेस्ट है, डाउ है, स्टॉक एक्सचेंज है, उसके इसके कंट्रोल में है और डीएसए भी इसके अंडर है, एफटीसी के अंडर। तो इसीलिए यहां जो है ऐसा सख्त लॉ है कि कोई गलत कंपनी अगर आई, गलत प्रोडक्ट लेकर आई और उसमें कोई रिपीट सेल्स नहीं है, अगर कोई बंदा मेंबर बनना चाहता है वेल एंड गुड, अगर कंज्यूमर बनना चाहता है वेल एंड गुड, लेकिन उसको उसके साथ जो है जबरदस्ती नहीं की जाती। तो ये है तरीका और ये ऑर्गेनाइजेशन आप जाके देख सकते हैं, फेडरल ट्रेड कमीशन, इसके अंदर हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। इसमें ज्यादातर औरतें हैं और खासकर हमारी औरतें हैं, डॉक्टर बन जाती हैं, इंजीनियर बन जाती हैं, शादी के बाद फिर वो जाहिर बात अपने बच्चों को उन्होंने पालना होता है, हाउसवाइफ बन जाती। तो बहुत सारी औरतें जो है ना इसमें इन्वॉल्व है, ऑलमोस्ट 3/4। और ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ का? अमेरिका का। अमेरिका से बाहर वेदर कनाडा है या मलेशिया है या इंडिया है या आपका दुबई है या यूरोप में सारे हैं, जहां जहां इनको जो है ना गवर्नमेंट ने उनको अप्रूव किया है या वो अंडरस्टैंड किया है। अभी भी गवर्नमेंट जो है एशिया और अफ्रीका में दे आर काइंड ऑफ डबल माइंडेड कि इसको करे या ना करे, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट होती है तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है। अब मैं आता हूं ऑनलाइन। ऑनलाइन का जमाना आ गया है और घर से बैठकर अगर आप करते हैं तो नथिंग लाइक इट। तो वर्क फ्रॉम होम अभी आई एम श्योर 30 to 40% लोग घर से काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, या मे बी ज्यादा, मे बी 50% और मोर। ऑनलाइन बिजनेस is the business of the future. What is the new normal of the world in business? Online business होगा और हो रहा है। हमारी जो कंपनी है वो ऑनलाइन में नहीं थी, इस 5-6 महीने के अंदर 100% हम ऑनलाइन चले गए। जहां तक वेबसाइट है, जहां तक आपका ऑनलाइन बाइंग है, ऑनलाइन सेलिंग है, ऑनलाइन मार्केटिंग है, ऑनलाइन कोचिंग है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं बैठा हूं वैंकूवर में और आप लोग पूरी दुनिया में हैं और ज्यादातर पाकिस्तान में हैं, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, ऑनलाइन में आपसे बात कर रहा हूं। तो ऑनलाइन का जमाना है। ऑनलाइन का मतलब ये है कि आप घर से बैठे कर सकते हैं। ये जहां से भी मैं बैठा हुआ हूं, मैं अपना, ये मेरा होम ऑफिस है
और ये जो है जो अभी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, जूम, आप जबरदस्त आजकल एजुकेशन जो मैं देख रहा हूं, ऑलमोस्ट 100% जो है जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को, जूम के तहत जो है ना, लोगों पे स्काइप है, हैंग आउट है, मैसेंजर है, ऑनलाइन, जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं लोगों से। तो यूजिंग द सोशल मीडिया टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। तो अब ये जो बिजनेस है हमारा डायरेक्ट सेलिंग, ये भी इस 6 महीने में काफी ऊंचा गया है। हमारी जहां तक कंपनी का ताल्लुक है वो तो मुझे पता है, और ये जो है ना फ्यूचर है, आप घर में बैठकर आप ये सारा कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का जो है ना एक प्रूवन टेस्टेड प्रोडक्ट होना चाहिए, और उनका जो सिस्टम है कि आपको पसंद आया, आपको अच्छा लगा, आप लोगों को बताया, और ये तो ये बिजनेस जो है एतमाद में है। कोई भी बिजनेस, ये हमारा नहीं, कोई भी बिजनेस। अब मैं आपको डिजिटल लैंडस्केप देना चाहता हूं। दुनिया में जो पॉपुलेशन है अभी 7.6 बिलियन है, अगर लेफ्ट से आप देखें, इंटरनेट यूजर 4 बिलियन लोग हैं, और सोशल मीडिया यूजर जो है 3.2 बिलियन लोग हैं। और आपका जो मोबाइल है, जो अभी दुनिया इसके थ्रू सारा काम कर रही है, यूनिक मोबाइल यूजर है 5.1 बिलियन, और एक्टिव मोबाइल यूजर्स हैं जो उसको इस्तेमाल करें बिजनेस में, बाकी वो है अबाउट 3 बिलियन लोग। तो आप देख सकते हैं ये सिनेरियो कैसे चेंज होगा। अभी मैं आपको दूसरा फिगर देता हूं। आपका जो कस्टमर है, खा आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं या नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप देखें बहुत सारी कंपनियां जो हैं अभी नहीं, कि यहां पर बहुत सारी जो पाकिस्तानी लेडीज हैं वो जाकर तो कपड़ा अपना ले नहीं सकती, जो डिजाइनर कपड़ा है या जो भी है, उनके जो ड्रेसेस हैं वो ऑनलाइन मंगवाती हैं, वो चेक करती हैं सारे का चाहिए, उनके पास पूरा का पूरा एक बना हुआ है गैलरी जिसके तहत वो करते हैं। अब आप देखें, इट्स नॉट अ मिलियन, इट्स अ बिलियन डॉलर। सो 210 में सिर्फ 10 साल पहले $1 बिलियन का ये इंडस्ट्री होता था, सोशल मीडिया बिजनेस। लास्ट ईयर इसको 3 बिलियन था, और जो फोरकास्ट किया जा रहा है वो बाय 2025 ये 8 बिलियन का जो है ना ये बिजनेस होगा थ्रू इंटरनेट। ऑफ कोर्स हमारी जो आबादी 8 बिलियन से ऊपर होगी, और 8 बिलियन का मतलब 8 बिलियन, अभी छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं यूट्यूब में। कल मेरा ग्रैंडचिल्ड्रन, मेरे पोते पोतियां आए, और उनको बैठ कर मैं दिखा रहा था कि किस तरह से जो है ना वो मुझे दिखा रहे थे, मैं नहीं दिखा रहा था, और वो यूट्यूब में जाकर जो है ना डिफरेंट चीजें मुझे दिखा रहे थे, किस तरह से गेम खेलते हैं, या फिर मैंने उनको कहा कि नमाज पढ़ने का तरीका देखो, इस तरह से ना। द नीड ऑफ द आवर इज वी नीड टू लर्न, और जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो सोशल मीडिया जो है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो आपको सोशल मीडिया पढ़ा रहे हैं, और बहुत सारी सोशल मीडिया है, लेकिन अभी मैंने आपको एनालाइज कराना मंथली यूजर ऑफ डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। फेसबुक इज 2.5 बिलियन का जो ना वो है आपका ऑन अ मंथली बेसिस। यूट्यूब इज 2 बिलियन, व्हाट्सएप इज 1.6 बिलियन, एंड फेसबुक मैसेंजर इज 1.3 बिलियन। अगर ये फेसबुक ही के अंडर आपका यूट्यूब, आपका व्हाट्सएप और मैसेंजर आता, यूट्यूब अलग है। अगर आप ये 3 प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें अपने बिजनेस में, तो विद इन कपल ऑफ ईयर्स, बाज लोग विद इन 1 ईयर, मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जिनका ऑलरेडी बहुत सारे फॉलोअर्स थे, वो सोशल मीडिया को सही तरीके से इस्तेमाल करके, और उनका बिजनेस 1 गुना नहीं 10 गुना बढ़ा है। एक मैं मिसाल देता हूं, एक लेडी हैं मिडिल ईस्ट में, बिल्कुल निकाब में, और उनका क्या काम था, स्नैपचैट के थ्रू और इंस्टाग्राम के थ्रू और फेसबुक के थ्रू वो सिर्फ लेडीज को खाना बनाना सिखाती थी। नथिंग स्पेशल, नॉर्मल खाना कैसे बनता है। जब वो उन्होंने ज्वाइन किया हमारा बिजनेस को, जब उनको मुकम्मल गजा है, वो गजा जो लोगों को सेहत दे रहा, तो उन्होंने अपना जो है ना चेंज किया,
पूरा पर्पस ऑफ कुकिंग टू हेल्दी कुकिंग, और विद इन 1 ईयर उनका बिजनेस, जो फॉलोअर तकरीबन 2.5-3 लाख लोग थे, उन्होंने पूरा प्लेटफॉर्म जो है इस्तेमाल किया टू रीच आउट टू द पीपल, और बिजनेस कहां से कहां चले गया। तो बिजनेस ऑफ सोशल वर्क, ये नहीं है कि जिस तरह मैंने आपको कहा, जो फ्रीडम जो मैं बात कर रहा हूं, फ्रीडम जो है जहां आपको सही खुशी मिलती है ना, जब आप देने लगते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मुल्कों में मैंने ट्रैवल किया, ऑलमोस्ट 45 कंट्रीज में, 45 कंट्रीज में मैंने ट्रैवल किया। ये मैं जो है टर्की में लास्ट ईयर गया था, और ये रेफ्यूजीज आपको नजर आ रहे हैं जो सीरिया, इराक और लीबिया के हैं, उनको जो है ना हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया। ये जो लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो बहरे हैं, और वो हमारा जो है ना बिजनेस को लेकर चल रहे हैं। ये पाकिस्तान में कराची से बाहर बहुत सारे मिलियंस में बच्चे हैं जो रात को अंधे हो जाते हैं, जिनका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस। सूरज गुरूब होने के बाद ये बच्चे अंधे हो जाते हैं। ये प्रोजेक्ट मैंने लिया था 2012 में, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ये 15, 16, 20 बच्चे थे, और अब 1000 बच्चों को जो है ना हमारे प्रोडक्ट से जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह फायदा मिल रहा है। तो मेरी जो मिशन है अब लाइफ में, आप जो भी कर लेते हैं, एक स्टेज में आके आप कहते हैं आप जो रिटायर हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है अभी तक, जैसा रोशन ने भी कहा, 1 लाख लोगों को मैंने ट्रेन किया, लाख से भी बढ़ गए हैं, और 2007 में फुल टाइम मैं इस बिजनेस में आया एज एन एंटरप्रेन्योर, फिर एंटरप्रेन्योर कोच बना, और अब मैं जो है ना लोगों को तालीम देता हूँ। मतलब बहुत सारे, आई एम श्योर रोशन ने कहा ज्यादातर यंगस्टर्स होंगे, यंगस्टर को भी देता हूँ, हमारे उम्र के भी लोगों को देता हूँ, हर एक को ग्लोबली देता हूँ, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो मेरा जो मिशन है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो है ना इस पर्पस में अल्लाह ताला जो है ना मुझे फुलफिलमेंट दे, मिलियन लोगों का ग्लोबली, के उनकी लाइफ में तब्दीली आए, खा वो छोटी तब्दीली हो या बड़ी तब्दीली हो। मेरे अपनी टीम में जो लोग काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, एक नहीं, दो नहीं, हजारों में जो लोग हैं, पाकिस्तान में भी हैं और मिडिल ईस्ट और बाकी जगह में, जो उनको जो है ना फायदा हो रहा है। मेरा अब सवाल है, जिस तरह मैंने शुरू में आपसे सवाल किया, तो मेरा कंक्लूडिंग सवाल यह है, अगर आप एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहते हैं तो आप क्या बनेंगे? इफ नॉट नाउ, व्हेन, कब? और just a second, if not direct selling opportunity, then which opportunity? क्योंकि यहां आपको पैसे देकर जो है ना इन्वेस्टमेंट, कोई भी बिजनेस में, देखिए मैंने बिजनेस किया है कोई 5-6 साल, तो जो नॉर्मल बिजनेस की जो दरसरी है, उसके जो आपके रिस्क है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो कुछ भी नहीं है हमारे इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। तो मैं दुआ करता हूं आप सेहतमंद रहें, अपने को सेफ रखें, खुश रहें और खुशियां बांटें। सो टाइम टू टेक कंट्रोल ऑफ योर हेल्थ एंड इनकम। आपका जो सेहत ना आपके हाथ में, इनकम भी आपके हाथ में, आप इसको किस तरह से लेके चलते हैं। अगर आपको मजीद इसके बारे में मालूम करना है, किस तरह से आपको सेहत का और इनकम, ये आपको नजर आ रहा है मैप योर फ्रीडम, www.mapyourfreedom.com। उसमें एंड में मेरी किताब का बुकलेट है, वो आप अपना नाम और ईमेल डालेंगे तो आपको ये फ्री का मिलेगा, और वहां आप जो भी लिखना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं अभी यहां से बैठकर आपको किस तरह से हेल्प कर सकता हूं, मेरा जो गिफ्ट है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। मेरा गिफ्ट ये है कि मेरा चैनल है मैप योर फ्रीडम, और उसमें 100 से करीब जो है ना वीडियोस हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, तो वो आप देख सकते हैं, अपने को एजुकेट कर सकते हैं, अपने को इंस्पायर कर सकते हैं, और अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आप वहां से बन सकते हैं। मेरा फेसबुक ग्रुप है जिसका नाम है हेल्थ, वेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। इसमें 8000 के करीब लोग हैं और वो बढ़ते जाएंगे, और उसमें तालीम देता हूं इस बिजनेस के अराउंड, कुछ सेहत के अराउंड। ये हमारे बानी है जो सेंटर में आपको नजर आ रहे हैं,
मेरी किताब है जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, कराची में, गुजरांवाला में, जो आपको एक हुनर सिखाता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कैसे करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जो पावर पॉइंट वेबिनार का जो आपने देखा और सुना। अब मैं स्टॉप करता हूं अपना स्क्रीन और ओवर टू रोशन। आई होप आई हैव टेकन माय टाइम। जो आप कह रहे थे कि आप कोई तकरीबन कोई 50 मिनट के अंदर लें, तो आई फिनिश्ड इट इन अबाउट 53 मिनट्स। बिल्कुल सर, वैसे ही आप टाइम के बिल्कुल ही पाबंदी निकले, बिल्कुल आपकी एग्जैक्ट टाइमिंग और अच्छी प्रेजेंटेशन थी, काफ़ी कुछ सीखने का था, इंफॉर्मेटिव थी। और अभी हम क्वेश्चंस लेंगे ऑडियंस से, अगर जो भी करना चाहते हैं हमारे फेसबुक पेज पे जो भी हमें कमेंट कर सकते हैं या इधर। पहला क्वेश्चन ये है, इन दिस पोस्ट कोविड एरा हाउ वी कैन एस्टैब्लिश अ ब्रांड इन हेल्थ केयर। देखिए, ये ब्रांड जो है ये ओवरनाइट नहीं होता है। मैं लोगों को टीच करता हूं। मेरा जो ब्रांड है मैप योर फ्रीडम, या ये फोन है आपका आईफोन, ये ब्रांड बहुत सालों के बाद बनता है। आप जो भी ब्रांड बनाना चाहते हैं इस पोस्ट कोविड में, वो आपका दिल और दिमाग जो है ना उसके साथ लगा होना चाहिए। वही लोग कामयाब होंगे जो पैशन के साथ काम करेंगे। पैशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मतलब ये नहीं कि किसी के कहने पे आप स्टार्ट कर दे बिजनेस। तो आप समझते हैं आप हेल्थ एंड वेलनेस में न जाना चाहते हैं, या आप अगर औरत हैं डिजाइनर बनना चाहती हैं ड्रेस का, तो उसके अराउंड वो आपका एक जो है ना लोगो होना चाहिए ब्रांड में, और आपका जो टैगलाइन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है ना टाइम लगता है। तो और सोशल मीडिया के थ्रू जो है ना अपने को विजिबल करें। फेसबुक जो है वो ये चाहता है कि आप कंसिस्टेंट रहें। आप वहां पर फेसबुक प्रोफाइल में आप चीजें बेच नहीं सकते हैं, फेसबुक ग्रुप में बेच सकते हैं, फेसबुक फैन पेज में बेच सकते हैं, लेकिन वहां पर नहीं। प्रोफाइल में इज अ प्लेटफॉर्म जहां पर आप कनेक्ट करते हैं। तो इसमें अगर आपको एक्सपर्टीज चाहिए, आई एम श्योर पाकिस्तान में एक नहीं बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रांडिंग जो है इट्स अ नेक्स्ट लेवल थिंग। लेकिन आपको किसी जो है ना प्रोडक्ट के साथ जुड़ना है, और अगर आपका अपना ब्रांड है, अगर आपका अपना प्रोडक्ट है ना। आई होप आई आंसर्ड दैट क्वेश्चन। बिल्कुल सर। और इसके अलावा ये है कि ये जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग इसमें ट्रस्ट नहीं करते। बिल्कुल, मैं जानता हूँ। तो इसको कैसे ट्रस्ट डेवलप किया जा सकता है? ट्रस्ट इसलिए नहीं डेवलप हुआ, अनफॉर्चुनेटली देखिए मुझे 12 साल से मैं हर साल आता हूँ। शुरू में तो साल में कोई 5-6 मरतबा आता था, तो ये चैलेंज मुझे वहां नजर आया। क्योंकि बहुत सारी जो है ना 2 नंबर कंपनी, स्कैम कंपनी, बगैर प्रोडक्ट वाली कंपनी जो रजिस्ट्रेशन करके, जो ये सारा जो है अगर वो किया जाएगा जहां से मैंने स्टार्ट किया ये बिजनेस, तो वो बंदा जेल में चला जाएगा। और यहाँ पर जो है ना, जो मैंने कहा ना FTC, फेडरल ट्रेड कमीशन, इसके तहत तो डेफिनेटली वो कंपनी भी बंद होगी, सारा कुछ होगा। अब आपका जो है, देखिए एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक कोई हॉस्पिटल है, मिसाल के तौर पर आगा खान हॉस्पिटल, आपका सबसे अच्छा हॉस्पिटल है कराची का, ठीक है। वहां पर एक डॉक्टर से गलती होती है और वो जिससे गलती की वजह से बंदा मर जाता है। उसके मतलब नहीं कि सारे डॉक्टर और आगा खान हॉस्पिटल खराब है, गलती तो होती है। तो इसी तरह ये गलतियां हुई हैं, और अब अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ अभी 3 या 4 कंपनियां हैं। अभी वहां पर जो गवर्नमेंट की जो बॉडी है वो चेक कर रही है कि सही कंपनियां आए, लोगों के साथ चीट ना करें। जहां तक इंडिविजुअल का ताल्लुक है, देखिए हमारा बिजनेस जो है ना ट्रस्ट के बिना है। आपको कोई चीज पसंद आया, आपने अपने जो ट्रस्ट में जितने जो लोग हैं आप उनको आप बताएं। पाकिस्तान के अंदर आपके भाई बहन है, वालदा पेरेंट्स हैं, वालिद वालिदा हैं, दोस्त हैं, नेबर्स हैं। आप देखिए बिजनेस तो करें आप,
लेकिन आप बिजनेस विद उसूल के साथ करें। क्यों जो है ना कोई कामयाब नहीं होता? क्योंकि जब वो अनएथिकल होता है, अनएथिकल मतलब कोई उसूल ही नहीं, और अगर वो होगा तो जाहिर बात है कामयाबी नहीं होनी है। तो आप कितना उस प्रोडक्ट के साथ जुड़ते हैं, उससे फायदा लेते हैं, उसके बारे में बताते हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज मैं जो कोच करता हूं, आप लोगों को कहेंगे देखो भाई, मैं आपके पास आया हूं आपके फायदे के लिए। आपका प्रॉब्लम है, अभी लोगों का प्रॉब्लम है या नहीं? सेहत का प्रॉब्लम है, पैसा का प्रॉब्लम है, ये दो मेन प्रॉब्लम है। आप उनको कहेंगे देखो आपका प्रॉब्लम जो है, इंशाल्लाह ताला मेरा जो सिस्टम है इसके तहत आप ये नहीं कहें कि नेटवर्क मार्केटिंग है, ये डायरेक्ट सेलिंग, मैं कुछ कर रहा हूं जिसके तहत, अगर वो कहते हैं कि क्या वो MLM है, MLM इज रॉन्ग वर्ड कंप्लीटली। MLM जो है, जो लोग बातें करते हैं अभी तक उनको ये समझ नहीं है MLM जो है किस तरह से पैसा मिलता है, उसका नाम है, इसका नाम है मल्टी लेवल मार्केटिंग, मतलब कंपनसेशन है। वो इंडस्ट्री का नाम नहीं, इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग, जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में उसको अप्रूव किया गया। बहरहाल आप के अराउंड बिजनेस फैलता है और आप उनको कहेंगे देखो मैंने तुमको मेंबर बनाने के लिए या तुमको कुछ बेचने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुम्हारा प्रॉब्लम है सेहत का, अगर तुम चाहते हो तो मैं वहां हेल्प कर सकता हूं, अगर पैसे का है तो वो भी मैं हेल्प कर सकता हूं, लेकिन आपने जो है ना डिसीजन, फैसला आपने करना है। तो ये बॉन्डिंग जो है, ये किसके साथ आपका कितना है, कितना एतमाद है, वो डिपेंड करता है, और वो आपको आगे जो है ना इंशाल्लाह ताला ट्रस्ट बढ़ाएगा। बिल्कुल सर। और इसके अलावा है कि we have heard a lot regarding selling on Amazon, but actually the problem is Amazon does not work here in Pakistan. So what should be our strategy to start healthcare business in international market? राइट, देखिए आपका जो है अपना वेबसाइट होना चाहिए। Amazon तो एक लेवल में है, आप Amazon को भूल जाएं। अगर पाकिस्तान में नहीं है Amazon, लेकिन आई एम श्योर पाकिस्तान में और भी प्लेटफॉर्म है। लेकिन अगर आप कोई प्रोडक्ट को आप समझते कि ये अच्छा प्रोडक्ट है, आपका अपना वेबसाइट के थ्रू आप बेच सकते हैं। अब आई डोंट नो, एक प्रोग्राम है बड़ा जबरदस्त, शॉपिफाई इसको कहते हैं, शॉपिफाई, वो पाकिस्तान में है या नहीं, तो जिसके तहत बहुत लोगों ने जो है ना चीजें बेची हैं, पाकिस्तान में अवेलेबल है, उस पे कर रहे हैं, अवेलेबल है। अब आप देखिए लेडीज जो हैं आपके बहुत बड़ी ब्रांड है सना सफीनास, कोई ड्रेस का है जो लेडीज लेती। अब वो आप उसको देखिए, ये ऑनलाइन बेच रही है एंड शी इज अ ब्रांड नेम। मतलब जहां भी मैं जाता हूँ बड़े बड़े बैनर्स तो नजर आते हैं। मैं इनफैक्ट लास्ट ईयर मैं मुल्तान आया हुआ था, रोशन आप ही के शहर में मैं आया हुआ था, तो बहुत बड़ा पोस्टर वो किला के सामने था। तो मैं जो मेरे साथी थे, मैंने कहा देखो कितना उन्होंने लाखों या करोड़ों दिया होगा इस पोस्टर, जो बैनर के लिए, एक बैनर के लिए। अब वो बैनर की जरूरत ही नहीं है। अब आप जो है ना अपना ब्रांड बनाएं अपने वेबसाइट के थ्रू। और अगर आपके फेसबुक में, मैं आपको एक बड़ा सिंपल चीज बताता हूं, अगर पूछता हूं किसी से आपका फेसबुक में कितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, तो अगर आपके 1000 हैं तो 1000 जो आपके दोस्त है ना, एक दोस्त का कम से कम 200 बंदे हैं। तो 1000 का मतलब आपका 200 से अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2 लाख। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप अपने लोगों से, जो आपके दोस्त है या दोस्त के दोस्त है, उनसे जब आप मिलेंगे तो आप बेचना शुरू कर देंगे। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो दफ्तर है वो 70 ममालिक में है, जहां भी बंदा बिजनेस करना चाहता है। अब मैं इधर बैठा हुआ हूं और मैं दुनिया में बैठ के बिजनेस कर रहा हूं। ऐसा बिजनेस होना चाहिए जिसके तहत जो है ना लोग को ट्रैवल करने की जरूरत नहीं, अपना ही वो सारा कुछ करें। बिल्कुल, आजकल तो डिजिटलाइजेशन ने हर चीज ही बदल के रख दी है, और फिजिकल स्टोर्स की जरूरत ही नहीं है। और ये आप देखोगे भी बड़े बड़े जो मॉल्स हैं ना, पहले देखा होगा कराची में, आई एम श्योर ज्यादातर लोग बड़े शहर के हैं, या लाहौर में वो छोटी छोटी दुकानें होती थी, मतलब क्लिफ्टन में कोई दुकानें हो गई, उधर जो लोग जाते थे, या
PCHS में, सोसाइटी में, इधर हो गया, कहीं नाजिमाबाद में हो गया, जो लोग कराची के वो सारे एरिया से वाकिफ हैं, करते 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 बड़े बड़े मॉल बनने शुरू हो गए, मेगा मॉल्स बनने शुरू हो गए। अब मेगा मॉल का भी जो है ना आने वाले दिन में वो जो है ना खात्मा हो जाना है। अब सब कुछ जो है ना अभी ऑनलाइन लोग जो है ना इसको चीजें खरीदेंगे। और कोई सवाल? सवाल ऑडियंस की तरफ से खत्म ही हो चुके हैं और हमारा सेशन का टाइम भी खत्म ही हो गया है। Right. So first of all, thank you very much for inviting me for this startup grind talk. और मेरी दुआ है आप लोग अपना ख्याल रखें for sure, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और ये जो चीजें मैंने आपसे शेयर की हैं इसको डेफिनेटली एक पॉजिटिव अंदाज में एक ओपन माइंड के साथ देखें, और ये जो है ना न्यू नॉर्मल जो मैंने कहा है, जो नई दुनिया जो आएगी, इसमें ये आप इस्तेमाल करें, और इसमें आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये टेक्नोलॉजी को सीखें। अगर आपको नहीं पता है, जिस तरह एट माई एज, मतलब आई वॉज नो वे क्लोज टू फेसबुक और सोशल मीडिया, लेकिन मैंने सीखा है इसको, और मैं कह सकता हूं कि मुझे कुछ आता है, और इसके कुछ से जो है ना अभी मैं आई एम रीचिंग आउट टू द होल वर्ल्ड। और पाकिस्तान में बड़े स्मार्ट लोग हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसे ऐसे वहां पर मैंने लोगों को देखे, कंटेंट राइटर एंड ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। जो भी सुन रहे हैं वो भी आपके जैसे किसी दिन में थे, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने सीखा। तो ये जो चीज है ना, जो चीज एक लीडर बनाता है वो है टू बिकम, जो लीडर अगर बनना चाहते हैं अपने बिजनेस में या कहीं भी, तो आपको रीड करना पड़ेगा। यू हैव टू बी अ रीडर इन ऑर्डर टू बिकम अ लीडर। एक मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया, तो मैं उनके घर गया कनाडा में, जहां मैं रहता हूं उसके बाहर एक जगह खिलौना। तो मैंने कहा कि मुझे आप सिखाएं, इतना आप सिखा रहे हैं ऑनलाइन। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे दफ्तर आओ। वो ड्राइंग रूम में हम बैठे हुए थे, उनके दफ्तर में गया, तो दफ्तर में चारों तरफ जो है ना शेल्फ थे, और उसमें नीचे से लेकर ऊपर तक किताबें थी। बोले कि अगर आपने आगे बढ़ना है ना, तो कम से कम एक किताब 1 महीने में पढ़ो, एक किताब, खा वो रिलीजन के बारे में हो, खा वो लिटरेचर के बारे में हो, बिजनेस के बारे में हो, सेहत के बारे में, किसी के बारे में, आप जरूर किताब। तो उसको पढ़ते 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 आप एक लेवल में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। और तो ये मेरा पैगाम है जितने भी यंगस्टर्स हैं कि आपने डिग्री ले ली है, MBA बन गए हैं, डॉक्टर बन गए हैं, इंजीनियर बन, पढ़ाई ना रोके, पढ़ाई करते रहें और इंशाल्लाह ताला आप बहुत कामयाब होंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना इतना कीमती टाइम दिया। वेलकम। और आपके साथ आगे भी जुड़े ही रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। ओके, हैव अ नाइस टाइम। गुड, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।